کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا منہ دھوڑ مٹی سر پایم سارا ننگ نموز ونجایم کوئی ویڑے نہ پچھن آیم ہتھیں الٹا عالم کھلدا کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ساریاں سونیاں وڈیائیاں او دے واسطے سارے سونے تے سچے نا او دے واسطے سارے اچے رتبے او دے واسطے جدے ناواں وچوں ایک نا رحمان ہے. ایف ایم پنجاب رنگ تو اس ویلے تسی ناصر احمد دی آواز سن رہے ہو. راولپنڈی، اسلام آباد، مری کہوٹا، کوٹلی ستیاں، گوجر خان، فتح جنگ، ٹیکسلا، جہاں جہاں میری آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام یونیورسٹی ٹائم. ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک 2 بجے تک. اور آج کے پروگرام میں میری ساتھی میزبان ہیں سمیہ ناصر. جی سمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہمیں یقین ہے جہاں کہیں ہماری آواز ہوا کے دوش پر تہرتی آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچ رہی ہوگی. تمام سننے والے، تمام اہل وطن ایک پرمسرت زندگی کے ساتھ بے حد خوش ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کی محبتوں، چاہتوں، خوشیوں کے ڈھیروں پیغام لے کے آپ کے روبرو، آپ کے درمیان مجھے کہتے ہیں سمیہ ناصر اور آپ سن رہے ہیں اپنا من پسند چینل ایف ایم پنجاب رنگ. آپ کی اپنی آواز، آپ کی اپنی پہچان. راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی جانب سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام یونیورسٹی ٹائم. یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے ایف ایم پنجاب رنگ راولپنڈی 99.4 سے براہ راست ہوا کے توش پر. اس وقت اگر وقت کی بات کی جائے تو ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق وقت ہوا چلتا ہے 12:04 اور آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا ٹھیک دوپہر 2 بجے تک. جی تو سامعین، آج کی تاریخ آپ کو بتاتے چلیں جو کہ ہے 15 اگست 2024. آپ ہمیں ہمارے نمبر 05192915220 پر کال کرتے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں اور ہم منتظر رہتے ہیں آپ کے ڈھیروں پیغامات کے. نئے سننے والوں کو بھی بتاتی چلوں کہ آپ واٹس ایپ پر ٹائپ کریں اپنا نام، اپنے شہر کا نام، مختصر پیغام اور اسے بھیج دیں 033392915220 پر. انٹرنیٹ کے ساتھیوں کے لیے ہمارا پتہ کچھ یوں ہے کہ وہ فیس بک پر فالو کریں ایف ایم پنجاب رنگ راولپنڈی 99.4 کو، جہاں پر وہ ہمیں براہ راست سن بھی سکتے ہیں. جی تو سامعین جن کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، وہ بیمار ہیں، اچھا فیل نہیں کر رہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور گیٹ ویل سون. میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. جو لوگ راولپنڈی شہر میں داخل ہو رہے ہیں ان سے کہوں گی جی آیا نو ست بسم اللہ تے بخیر راگ لے. اور جو لوگ راولپنڈی شہر سے دوسرے شہروں کو جا رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیریت اپنی منزل مقصود پر پہنچائے اور آپ کا حامی و ناصر رہے. جی تو جو حضرات، جو سامعین ڈرائیونگ کر رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے اپنی منزل مقصود پر پہنچائے اور احتیاط سے ڈرائیونگ کیجئے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں جتھے ٹائر اتھے خیر. جی تو سامعین، ایک افریقی کہاوت ہے if you educate a man you educate an individual but if you educate a woman you educate a whole nation. یعنی کہ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک خاندان، ایک قوم کو تعلیم دیتے ہیں. علم نور ہے، جہالت گمراہی ہے. انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے تعلیم و تربیت، علم و آگاہی اور شعور بنیادی اہمیت کے حامل ہے. دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ طبقہ نسواں ہمارے معاشرے کا نصف حصہ ہے، لہٰذا اس طبقہ نسواں کی تعلیم و تربیت معاشرے کی اصلاح و فلاح کے لیے اسوس ضروری اور ناگزیر ہے. راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر انیلا کمال کی سربراہی میں طالبات کی ذہانت اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے. طالبات کو آئی ٹی سمیت جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم کی فراہمی
गुलामी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। आज हमारे लिए बड़े मान और एजाज की बात है कि रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी के शोबा फाइन आर्ट से सारिश जमील साहिबा ने हमारे स्टूडियो को रौनक बख्शी। सारिश साहिबा, मैं आपको तहे दिल से पंजाब रंग के स्टूडियोज में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो सामीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सारिश जमील साहिबा, जो कि शोबा फाइन आर्ट्स रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, उसकी आज नुमाइंदगी कर रही हैं। आज हम इनसे फाइन आर्ट्स के बारे में जानेंगे। आप कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे नंबर्स एक दफा फिर नोट फरमा लें। 0333929152 पे आप व्हाट्सएप के जरिए हमें मैसेज भेजें। 0519291520 पे हमें आप कॉल करें। तो सारिश साहिबा, फाइन आर्ट्स पे बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे सामईन के लिए कुछ अपने बारे में बताइएगा, अपनी जाए पैदाइश, तालीमी और तदरीसी सफर के बारे में बताइएगा। जी, मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है, यहीं पैदा हुई और यहीं तालीम हासिल की। बैचलर्स जो स्कूल कॉलेज सब मेरा रावलपिंडी से था। जो फाइन आर्ट्स की तालीम थी वो मैंने फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी से स्टार्ट लिया। बीएस प्रोग्राम वहाँ पे फाइन आर्ट्स 4 इयर्स, उस टाइम पे यहाँ पे बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल था 4 इयर्स प्रोग्राम। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया फाइन आर्ट्स और वो एक पहला मौका था जब के पूरी आज़ादी थी कि अपनी मर्जी से हम पढ़ सकते थे, कि हम अपनी मर्जी से फील्ड सेलेक्ट कर सकते थे कि किसमें हमारा दिल चाहता है पढ़ने को। तो वो एक मेरा अपना डिसीजन था सिलेक्शन का कि मैं फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहती थी। इससे पहले मैं कंप्यूटर आर्ट्स में थी, इंटर मैंने ICS में किया, बट उसके बाद क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट फाइन आर्ट्स में था तो मैंने उस फील्ड को सिलेक्ट किया अपने लिए। फील्ड सेलेक्ट करने का डिसीजन मेरे अपने लिहाज से बहुत मेरे लिए बेहतर था। वो मेरे अपनी लर्निंग के लिए, मेरी अपने ज़हनी जो तंदुरुस्ती उसको रखने के लिए मेरे लिए बहुत बेहतर साबित हुआ और आसान नहीं था। फाइन आर्ट्स जो है सब्जेक्ट, वो आपका ना सिर्फ कि आपको वो तफरीह को फराहम करते हैं, आप इंजॉय करते हो, साथ साथ अब वो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपका माइंड और बॉडी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। आपको जस्ट पढ़ना नहीं होता, आपने प्रैक्टिकली चीज़ों को करना होता है, आपने पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करना होता है। तो ये जो है ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ मेरे अपने एक्सपीरियंस के लिए। बहुत कुछ सीखा, बहुत मुश्किल टाइम भी आया और उसके बाद जब रिवॉर्ड देखा वो उससे भी ज्यादा अच्छा था। सो सबसे ज्यादा फाइन आर्ट्स फील्ड में मैंने एक्सपीरियंस किया कि आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी नजर आते हैं अपनी लर्निंग के। आप एक प्रोसीजर के साथ गुजर रहे हैं, थोड़ा थकावट वाला भी होता है, समटाइम्स बहुत इंजॉय करते हैं लेकिन थकावट भी हो जाती है, एक्सटेंसिव होता है। सो आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, आप बहुत घंटों तक काम कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, लेकिन जो एट द एंड आप जब रिजल्ट देखते हैं तो उससे जो खुशी होती है वो आपको किसी और सब्जेक्ट से नहीं मिलती। ये मैंने देखा कि दूसरी फील्ड से हमारी फील्ड इस तरह डिफरेंट है कि आप जो सीखते हैं आप उसको प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं अपने सामने। तो बैचलर्स मैंने जो है फातिमा जिन्ना से लिया और अनएक्सपेक्टेड ये भी मेरे लिए सरप्राइज था कि उसमें मैं डिस्टिंक्शन होल्डर कंसिडर हुई, जो कि मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ICS था, कंप्यूटर साइंस था, फाइन आर्ट्स नहीं पढ़ा हुआ था कॉलेज में। बट बहुत से बच्चे थे जो मेरे साथ फाइन आर्ट्स के बैकग्राउंड के थे, बट मेहनत की और जब 4 साल के बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मेरा सिल्वर मेडल था। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और जो कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही मेरी मर्जी के पर सब्जेक्ट में। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग थे जो कहते थे कि डॉक्टर क्यों नहीं बनी, तो आप फाइन आर्ट्स में क्यों चलेगी। लाइक ये कॉन्सेप्ट था कि जो लोग जिनके कम मार्क्स आते हैं शायद वो लोग फाइन आर्ट्स सेलेक्ट करते हैं या जो पढ़ने में ज्यादा शौकीन नहीं है। तो मेरी फैमिली के लिए बड़ा शॉकिंग था कि आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप फाइन आर्ट्स में क्यों गए। सो एक ये चेंज करने की जरूरत थी। एक लोगों का ये कॉन्सेप्ट बन गया हुआ था कि फाइन आर्ट्स में जो है वो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे नहीं जा सकते, तो ये गलत साबित हुआ। फिर घर में जो है वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि ये भी एक फील्ड है, कि ये भी एक प्रॉपर फील्ड है। आप इसके बाद जब मेरा मेडल था तो उसके बाद मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा फिर मुझे सपोर्ट किया कि नहीं आपको और पढ़ना चाहिए इसके अंदर। जबकि पहले मेरा डिसीजन था और सेकंड डिसीजन जो मुझे अगले मास्टर्स के लिए था वो मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया कि नहीं इसको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप कर सकते हो तो इसको आगे कंटिन्यू करें। तो इसमें एक और चीज मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी जो कि अब मैं खुद एज अ टीचर फील करती हूँ कि एक टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आपकी अपने स्टूडेंट्स की लाइफ को बना रहे होते हैं। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, ना डायरेक्शन होती है, वो जस्ट फॉलो कर रहे होते हैं। आपकी उस टाइम पे मेंटल लेवल इतना मेच्योर नहीं होता कि आपने कहाँ जाना है। जो आपके टीचर्स हैं वो आपको डायरेक्शन देते हैं, वही आपकी लाइफ बनाते हैं या फिर खराब भी कर देते हैं इवन के। बट मैंने देखा कि मेरे टीचर्स ने जितना मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं जो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती, उन्होंने
उन्होंने मुझसे मेक श्योर करवाया कि मैं कर सकती हूँ, और वो मुझे तब पता चला जब मैं कर चुकी होती थी. लाइक हम लिटरली, हमारे टीचर्स हमें धकेलते थे कि ये आपने करना है, और वो जब मैंने किया, इवन के बैचलर्स के टाइम के बाद, मुझे फौरन बाद, जबकि मेरे पास अभी डायरेक्शन डिसाइड करने वाला मोड था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल में जाना चाहिए या आगे पढ़ना चाहिए, तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने वर्कशॉप्स करवानी है, और कैनेडियन प्रोजेक्ट था, और आपने ना स्कूल्स की प्रिंसिपल्स को ट्रेन करना है. तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मैं स्कूल के प्रिंसिपल्स को जाके ट्रेन करूँ. तो वो फर्स्ट स्टेप ही मेरे लिए बड़ा प्रेशर वाला था कि मैं किस तरह इतने एक्सपीरियंस लोगों को जाके ट्रेन करूं. उन्होंने मुझे, बस मेरी मर्जी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मुझे पता है तुम कर सकती हो. अब मैं सेलेक्ट हुई अपने डिपार्टमेंट से. वहां पे एक लेदर वर्कशॉप थी जो कि कॉटेज इंडस्ट्री को स्प्रेड करने के लिए एक स्टार्ट की थी, इनिशिएटिव था कैनेडियन प्रोजेक्ट. सो जब मैं वहां पे गई अपनी क्लास में, वहां पे मेरे स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स थे जो मेरे सामने बैठे हुए थे, और वो सारे के सारे रावलपिंडी इस्लामाबाद स्कूल्स के प्रिंसिपल्स थे. तो मेरे लिए फर्स्ट एक वो चीज बहुत थी कि मैं जब जाकर बैठी तो वो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं उनकी टीचर हूँ. इवन के वो मुझे कह रहे थे कि आए बेटे हमारे साथ बैठ जाए. सो मेरे लिए एक चीज वो उनको रिकॉग्नाइज कराना कि नहीं, मैं आपकी टीचर हूँ, वो एक बड़ा डिफरेंट का था एक्सपीरियंस. एंड देन फिर जब मैंने उनको सिखाया तो उसका जो आउटपुट आया वो बड़ा सरप्राइजिंग था, बिकॉज मैंने इस बेसिस पर वो सिलेक्ट की वर्कशॉप के मेरे टीचर मेरी हेल्प करेंगे. लेकिन मेरे साथ हुआ ये कि वो जब मुझे एंटर किया, उन्होंने कहा अब मैं नहीं आऊंगा, यू हैव टू डू इट. और वो जो एक लेवल था जिसपे मैंने कहा कि मुझे अब अकेले करना है, और फिर मैंने किया. और उसके बाद ये हुआ कि फिर मेरी वर्कशॉप वन ऑफ द बेस्ट वर्कशॉप्स में सिलेक्ट हुई, और हमें एजुकेशन एक्सपो में फिर दोबारा से परफॉर्म किया. सो एक मेरा ये फर्स्ट लेवल था जो कि मेरी टीचर की वजह से था. जी सारिश जमील साहबा, आपकी जो करियर है और जो आपका इल्मी और तदरीसी सफ़र है वो बड़ा इंस्पायरिंग है, और सुन के बड़ा अच्छा लगा. और आप बहुत सारे नई तालिबात के लिए एक मोटिवेशन की हैसियत रखती हैं, और आपसे हम फाइन आर्ट्स के बारे में जानते रहेंगे. अब मैं बढ़ूंगा समिया की तरफ, और समिया से कहूँगा कि आप सारिश साहिबा से पहला सवाल कीजिएगा. सारिश जमील साहिबा, क्या आप रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी के शोबा फाइन आर्ट्स का एक मुफस्सिल जायजा फराहम कर सकती हैं, और ये भी बताइएगा वो कौन सी खसूसियात हैं जो शोबा फाइन आर्ट्स को दूसरी यूनिवर्सिटियों से मुनफरिद बनाती हैं. जो रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट जो है, ये दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स इन ट्विन सिटीज़. ये सबसे पुराना डिपार्टमेंट है, और यहाँ की मुनफरिद बात यह है कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने पढ़ा जो कि अभी अपनी फील्ड में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं. उनमें कुछ नाम मैं बोलूँगी कि जो पाकिस्तान की सबसे पहली फीमेल कार्टूनिस्ट हैं निगार नज़र, वो हमारी ग्रेजुएट हैं यहाँ ही से. फिर डॉक्टर शाहिदा मंसूर हैं जो कि कॉमसैट्स में डीन हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, वो भी यहीं से पढ़ चुकी हैं. इसी तरह बहुत से आर्टिस्ट हैं जो यहाँ से पढ़ चुके हैं. तो ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़े ऑनर की बात है कि यहाँ से बहुत सारे लोग तालीम हासिल कर चुके हैं. और एक और ऑनर की बात ये भी है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी पढ़ा चुके हैं यहाँ पे, जैसे गुलाम रसूल साहब हैं, वो इसी तरह मिसेस तस्नीम अब्बास जिनको तमगा इम्तियाज मिला हुआ है. इसी तरह बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं. यहाँ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में हम 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं जो कि 4 साल का जो प्रोग्राम है. इसमें जो है हम 4 मेजर कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं बेसिकली, जिसमें एक पेंटिंग है, स्कल्पचर है, प्रिंट मेकिंग है और मिनिएचर पेंटिंग है. इसके साथ साथ हम इस ड्राइंग के कोर्सेज भी पढ़ा रहे हैं, डिजिटल कोर्सेज भी साथ हैं. इसी तरह हम हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के भी सारे कोर्सेज यहाँ पे पढ़ा रहे हैं. तो ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए ऑनर की बात. जी. शोबा फाइन आर्ट्स में कौन सी स्पेशलाइजेशन करवाई जाती हैं, और ये स्पेशलाइजेशंस मुख्तलिफ तख्लीकी असनाफ जैसे कि पेंटिंग, मुजस्समा साजी या डिजिटल आर्ट्स का अहाता कैसे करती हैं? अच्छा, बेसिकली हमारे जो मेजर कोर्सेज हैं जैसे कि पेंटिंग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम जब वो इस डिग्री में एंटर होते हैं तो उनको 5th सेमेस्टर तक हम इन सारे हमारे जो मेजर्स हैं वो पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, मिनिएचर पेंटिंग, इन सब के लेवल्स हम पढ़ा देते हैं. यानी कि जो नीचे से लेवल यानी बिल्कुल शुरुआत है, यानी कि पहली दफा जिस तरह कोई सब्जेक्ट के साथ इंट्रोडक्शन होता है, हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं विद इन फर्स्ट 5 सेमेस्टर्स. और जब तक वो 5 सेमेस्टर्स पढ़ लेते हैं
اس میں وہ ان سبجیکٹس کو کے 3 لیولز کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں سارے میجر کورسز کے, تاکہ ان کو سارے میجر کورسز کا انٹروڈکشن سمجھ آ جائے. پھر وہ اپنی مرضی سے فیلڈ سلیکٹ کرتے ہیں 6 سیمسٹر میں کہ ان کو کون سا سبجیکٹ ان کے مطابق ان کو لگتا ہے کہ وہ اس میں زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, وہ سلیکٹ کرتے ہیں. اب اسی طرح جن بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ وہ پینٹنگ میں زیادہ اچھے ایکسل کر سکتے ہیں, وہ سلیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح اسکلپچر, پرنٹ میکنگ, منیچر, یہ چاروں سبجیکٹس ایسے ہیں جو کہ اسٹوڈینٹس پڑھنے کے بعد اس کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد سلیکٹ کرتے ہیں. اچھا سر صاحبہ, ہمیں بتائیے گا کہ شعبہ فائن آرٹس طالبات کے فنکارانہ انداز کو نکھارنے میں تخلیقی اظہار کی حوصلہ افزائی کیسے کرتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ہے کسی بھی آرٹسٹ کو کہ اس کو سب سے زیادہ کمپلیمنٹس, یعنی اس کی جو بھی تخلیقی صلاحیت ہے اس کو ابھارا جائے. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہمارے فائن آرٹس میں ٹیچنگ میتھڈس ڈفرینٹ ہیں. اب جب ہم ایک کلاس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اوور آل ایک کلاس پوری کلاس کے لیے ایک جیسا نہیں پڑھا سکتے. ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کی اپنی نیچر ہوتی ہے. کچھ اسٹوڈینٹس زیادہ بولنا پسند کرتے ہیں, پریکٹیکل میں تھوڑے سے شائع ہوتے ہیں. کچھ بچے بولنا نہیں چاہتے لیکن وہ پریکٹیکل میں بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. کچھ اسٹوڈینٹس کو تھوڑی سی سمجھنے میں, پروسیسنگ میں ٹائم لگتا ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر اسٹوڈینٹ کی نیچر کیا ہے, تو اسی اسٹوڈینٹ کی اسی نیچر کو لیتے ہوئے ہم کسی کو پریشرائز نہیں کرتے کہ اگر اس کی صلاحیت پریکٹیکل میں زیادہ وہ بولنا نہیں چاہتا تو ہم اس کی شخصیت کو خراب نہیں کرتے, اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اچھا اس کی پریکٹیکل نیڈ زیادہ ہیں, تو ہم اس کو کس طرح پریکٹیکل میں کانفیڈینس اسی کے کام کے تھرو دلوائیں, نہ کہ ہم اس کی چیزوں خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ پہلے کریں. ہم ود ٹائم ان کی چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں, اور پھر جب اس کو وہ دیکھتا ہے کہ میں ایک اسٹیج پہ, پھر اس کے اندر کانفیڈینس ڈیولپ کرتے ہیں کہ یس یو کین اسپیک اباؤٹ اٹ ایز ویل. سو ہر بچے کو ہمیں انڈیویجولی دیکھنا ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی کو. تو اس طرح یہاں پہ فائن آرٹس میں چلا. ایک بار میں آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام یونیورسٹی ٹائم, اور آج ہمارے ساتھ سعید صاحبہ موجود ہیں فائن آرٹ سے. ان سے گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے. میم آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی. جیسا کہ شعبہ فائن آرٹس میں عملی تجربے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے, کیا آپ اسٹوڈیو ورک, ایگزیبیشن جیسے کہ ہینڈ آن لرننگ مواقعوں کے بارے میں بتا سکتی ہیں جن کی طالبات اپنی تعلیمی سفر میں توقع کر سکتی ہیں؟ بالکل, ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈینٹس نے پریکٹیکل لرن کیا ہے وہ اس کو ایگزیبٹ بھی کریں. ہمارا سب سے زیادہ پریکٹس تو ہم ان کی کرواتے ہیں ہر سیمسٹر میں. جب وہ اپنے پریکٹیکل اسائنمنٹس کر لیتے ہیں, پروجیکٹس کر لیتے ہیں, تو ہماری پریکٹس ہے کہ ہر سیمسٹر کے اینڈ پہ ان کو ایک ایگزیبیشن کی طرح ڈسپلے کرنے کی پریکٹس کرواتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ آفٹر ڈگری جب کہیں پہ ایگزیبٹ کریں گے تو ان کو اس کی سینس ہوتی ہے کہ اس کو پریکٹیکلی کیسے ارینج کرنا ہے, کون سی پینٹنگ کس کے ساتھ لگے گی, کتنی ہائٹ پہ لگے گی, کتنے ڈسٹینس پہ لگاتے ہیں. تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہم سیمسٹر میں ود ان اسٹڈیز ان کو ساتھ ساتھ لرننگ کرواتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں ان کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. سب سے زیادہ ہمیں جو سپورٹ کرتا ہے وہ یہاں پہ PNCA ہے اسلام آباد میں, پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس. انہوں نے ہمیشہ سے ہمارے جیسے ہی گریجویٹس ہوتے ہیں یا ایون کے ریگولرلی وہ ایگزیبیشنز کنڈکٹ کرواتے ہیں تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو پریفر کرتے ہیں. ابھی تک ہمارے 2 بیچز جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں راولپنڈی ویمن یونیورسٹی سے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کے. تو فرسٹ بیچ کا بھی جو ایگزیبیشن تھا وہ سب سے پہلے PNCA نے اپنی گیلری میں ہمارا کنڈکٹ کروایا اور بہت سکسیزفل رہا. اسی طرح سیکنڈ بیچ کا بھی جو ہے وہ تھیسس گریجویٹس کا وہاں پہ انہوں نے ایگزیبٹ کروایا. سیکنڈلی ہماری یہاں پہ راولپنڈی آرٹس کاؤنسل کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ہے, جن کے ساتھ ہمارا MOU بھی سائن ہے. انہوں نے ان کی بہت زیادہ ہم شکر گزار ہیں, انہوں نے اپنی ہمیں گیلری پرووائڈ کی. تو جیسے آفٹر گریجویشن ساتھ ہی ان کو ایک پریکٹیکل اسٹیپ ہم نے ایز اے ٹیچر, ایز اے یونیورسٹی ہم نے ان کو پرووائڈ کیا تاکہ وہ جو انہوں نے اسٹڈیز کی ہیں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں. جی سارے صاحبہ, بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور ان کا ذکر کرنا بڑا ہی ضروری ہے. محمد بلال صاحب ہمیں سن رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا ہے. چودھری اشفاق احمد صاحب ہمیں سن رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میڈم یہ آپ کی قابلیت ہے کہ آپ نے 2 مضامین میں BS کیا ہے اور 2 مضامین کی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. منظر محمود صاحب ہمیں سن رہے ہیں اور انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے. ماریا سعید قریشی صاحبہ جو کہ خود ایک بڑی اچھی فنکارہ ہیں اور آرٹ سے ان کی بڑی دلچسپی اور لگاؤ ہے, وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنی ہے اور پروگرام کو پسند کیا ہے. محمد یوسف مجبور صاحب ہمیں سن رہے ہیں اور انہوں نے اپنی مجبوری کا ذکر تو نہیں کیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ توسا سے میں سن رہا ہوں اور پروگرام کو پسند کیا ہے. ناصر وکیل صاحب ہمیں سن رہے ہیں, اللہ نے آپ کو سلامت رکھے, صحت اور تندرستی عطا فرمائے. مسز سعید ملک صاحبہ ہمیں سن رہی ہیں اور انہوں نے بھی پروگرام
प्रोग्राम को पसंद किया है। आप तमाम सामीन का बहुत शुक्रिया। जी समिया। चूँकि शोबा फाइन आर्ट्स की फैकल्टी तालिबात के लिए फनी सफर की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है, क्या आप हमें फाइन आर्ट्स की फैकल्टी मेंबरान की महारत और तजुर्बे के बारे में बता सकती हैं? जी जी, हमारे पास जो है बहुत स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में, और ये हम बहुत लकी हैं कि हमें हमेशा से अच्छे लोग यहाँ पे मिले हैं। सबसे पहले तो मैं मिस नबिया का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। वो लेक्चरर फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट हैं, वो लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमफिल किया है और बहुत अच्छी स्किल्ड आर्टिस्ट हैं। पेंटिंग उनका जो है वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। इसके अलावा उनकी ड्राइंग स्किल्स भी बहुत आला हैं। उन्होंने अपने भी एग्जीबिशंस किए अपनी फील्ड में, वो भी एमफिल में वो गोल्ड मेडलिस्ट है। सेकेंडली दूसरे फैकल्टी मेंबर मैं खुद हूँ। इसी तरह मेरे पास जो बैचलर्स एंड मास्टर्स की डिग्रीज हैं फाइन आर्ट्स में, बैचलर्स में मेरा सिल्वर मेडल है, मास्टर्स में मेरा गोल्ड मेडल है। तो इसी तरह मिस नबीहा मेरा, इसी तरह हमारे पास और एनसीए के बहुत सारे एनसीए के ग्रेजुएट्स जो हैं वो फैकल्टी में बहुत अच्छे हमें मिले हैं। कॉमसेट से जो हैं वो हैं, तो हमारे पास बहुत वेराइटी है जिसमें कुछ पीएचडी फैकल्टी हैं, कुछ पोस्ट डॉक फैकल्टी भी हमारे पास आई हैं जो कि रिसर्च पढ़ाते हैं। तो हमारे पास हर सब मजमून के स्पेसिफाइड टीचर्स हमने यहाँ पे हायर किए। जी मैडम, हम आपसे ये भी पूछेंगे कि आप जदीद तरीकों से कैसे ड्राइंग और पेंटिंग जैसी जो रवायती फनकाराना तकनीक हैं उनको कैसे सिखाते हैं, क्योंकि ये जिद्दत का जमाना है। सारी साहिबा हमें बताइएगा कि शोबा फाइन आर्ट्स डिजिटल आर्ट और मल्टीमीडिया जैसे जदीद तरीकों के साथ ड्राइंग और पेंटिंग जैसी रिवायती फनकाराना तकनीक कैसे सिखाता है? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट के जो है हमने उनको अपने स्टूडेंट्स को मार्केट के मुताबिक ओरिएंटेड रखना है, उनको अपडेटेड रखना है। ट्रेडिशनल मेथड्स हम जरूर सिखाते हैं क्योंकि बेस बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी डायरेक्ट जंप करके मॉडर्न टेक्निक्स पर नहीं आ सकते। जब तक आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी, आपको क्लासिकल मेथड्स नहीं आएंगे, तब तक आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम ट्रेडिशनल ड्राइंग पेंटिंग सब जरूर करवाते हैं, लेकिन उसमें हम नए तरीकों के अकॉर्डिंग, लाइक जिस तरह अगर हम ड्राइंग है तो हम ड्राइंग में मीडियम जो है वो यूजली कंसिडर किए जाते हैं कि पेंसिल्स के साथ ही ड्राइंग है। तो उसमें हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मीडियम्स भी एक्सप्लोर करवाते हैं। स्टूडेंट्स को ओपन चॉइस देते हैं, फ्रीडम देते हैं कि वो ड्राइंग सिर्फ पेंसिल से ही नहीं हो सकती, आप डिफरेंट मीडियम सेलेक्ट करें, वो किसी भी चीज से की जा सकती है। इसी तरह पेंटिंग में हम उनको डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन करवाते हैं कि सिर्फ पेंटिंग जो है वो सिंपल फ्लैट कैनवस पे पेंट करने का नाम नहीं है, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करें। उसके अंदर डिफरेंट मीडियम्स एक्सप्लोर कर चुके हैं बहुत सारे बच्चे। इवन के कैनवस पे भी पेंटिंग जरूरी नहीं है कि कैनवस पे ही हो। तो हमारे स्टूडेंट्स जो है वो थीसिस के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, एक्रेलिक पे कर चुके हैं। डिजिटल मीडिया जो कोर्सेज हैं वो हम उनको इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वो अपने इन मीडियम्स को जब मार्केट में जाएं तो उसको प्रोपेगेट कर सकें, उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखा सकें। इसी तरह आपकी सिंपल जो ड्राइंग है वो डिजिटल मीडिया में जाके एक एनिमेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को मार्केट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड रखें ताकि वो जब ग्रेजुएट होकर बाहर निकलें तो वो किसी भी तरीके से पीछे ना रहें बाकी स्टूडेंट्स के साथ। जी सारिश साहिबा, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारे सुनने वाले हैं उनके पैगामात को शामिल करना भी बहुत जरूरी है। मिसेस सईद मलिक ने एक दफा फिर से मैसेज भेजा है और उन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया है और उन्होंने कहा है कि मुझे भी फाइन आर्ट्स का बड़ा शौक था, लेकिन बदकिस्मती है कि मैं इस शोबे में ज्यादा सीख न सकी। तो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी समिया, अगला सवाल कीजिएगा। जी साहिबा, चूंकि फन के पीछे मौजूद तारीख और नजरिए को समझना बेहद जरूरी है, लिहाजा ये बताइएगा कि आर्ट की तारीख को निसाब का हिस्सा कैसे बनाया जाता है और ये तालिबात को इनकी तख्लीकी काम निखारने में कैसे मुआवन साबित होता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी तारीख से सबसे पहले सीखना होता है, उसके बाद आप अपनी तारीख बनाते हैं। तो हमने अपने जो करिकुलम है उसको प्रॉपरली डिजाइन किया हुआ है, जिससे हम फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं। हर सेमेस्टर में हमने उनको एक सब्जेक्ट जरूर हिस्ट्री का प्रोवाइड किया हुआ है, जहाँ से वो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है, यानी स्टूडेंट्स जब एंटर होते हैं डिग्री में तो हम उनको हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस पढ़ाते हैं ताकि उनको समझ आए। जो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस हैं जो हिस्ट्री की, वो डिफरेंट सिविलाइजेशंस को पढ़ते हैं, आपकी स्टोन एज से लेकर इजिप्शियन रोमन तक सारी जो है वो बेसिकली सिविलाइजेशंस ने जो इन्वेंट की इन चीजें या उन्होंने जो भी आर्ट के अंदर जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो भी हम उनको सिखाते हैं, उनकी क्या जो थी सक्सेस स्टोरीज थी। फिर देन जब हम आर्ट की तरफ आते हैं तो हमने वो भी हर लेवल रखा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो जब तक 6-7 सेमेस्टर तक
आए जबकि उन्होंने थीसिस देना, तो उनको हर आर्ट की हिस्ट्री में से, यानी कि जो फील्ड है कि किन पेंटर्स ने अपने दौर में किस तरह की टेक्निक्स जो है वो अपने से तख्लीक की, और फिर हर मूवमेंट जो है वो पिछली मूवमेंट को नेगेट करके नई मूवमेंट बनाती है। तो उसमें से लर्निंग बहुत है कि किन पॉइंट्स पर नेगेट करके आप अपना एक पर्सनालिटी लेकर आते हैं, अपना एक नाम बनाते हैं। तो हर मूवमेंट बाय मूवमेंट हमने उनके करिकुलम में इसको डिजाइन किया हुआ है ताकि वो उन सब से सीखते हुए अब जो वो जिस दौर में गुजर रहे हैं, जो कि कंटेम्प्रेरी आर्ट का दौर कहलाया जा रहा है फाइन आर्ट्स के लिए, तो उसमें वो जब अपना पार्ट प्ले करें तो वो फिर हिस्ट्री में अपना कैसे नाम छोड़ सकते हैं। बेहतरीन। सारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है और हमें बता रही थी कि तारीख में किस तरह से आर्ट का जो है ना कल्चर स्टार्ट हुआ, और इसी तरह कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हुई थी इजिप्शियन से ही, स्टोन वर्क आर्ट से जो है ना सारों ने कम्युनिकेट करना शुरू किया था। तो सारी साहिबा हमें ये भी बताइए कि शोबा फाइन आर्ट्स में तालिबात के लिए नुमाइशों या आर्ट शोज के जरिए इनके काम की नुमाइश के मौके मौजूद हैं? अगर ऐसा है तो ये तजुर्बा इनकी पेशा वराना तरक्की में किस तरह मुआवनत करता है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो हम हमारी यूनिवर्सिटी में हमारी वाइस चांसलर जो हैं वो हम उनके लिए उनके बहुत ज्यादा थैंक्स कहते हैं। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले तो हम यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी प्रैक्टिस कराते हैं, हर सेमेस्टर में वो अपना एग्जीबिशन करें। इसके अलावा हम उनको यूनिवर्सिटी के बाहर जितने मौके हैं वो हम उनको उनके साथ लाजमी स्टूडेंट्स को उसमें एंगेज करवाते हैं, और उसके लिए सारी फैसिलिटीज हमें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स ने कहीं अवेल करनी अपॉर्चुनिटी और हमें कोई मुश्किल आई हो। हमेशा हमारे साथ जो हमारी यूनिवर्सिटी की एडमिन है, फैकल्टी है, वो सारी हेल्पफुल रही है। हम उनको जहां पॉसिबल होता है कि उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो वहां हम उनको लेकर जाते हैं। इसी तरह जैसे ग्रेजुएट होते हैं, स्टिल वो हमारे ग्रेजुएट्स हो चुके होते हैं, लेकिन हम उनको फिर भी इंगेज रखते हैं। एलुमनाइज के साथ हम बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज रखते हैं, उनको भी हम एंगेज रखते हैं, और इवन के उनको एज अ सपोर्ट रखते हैं कि हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो लिंक्ड रहें अपने एलुमनाइज के साथ, और फिर वो अपनी प्रोफेशनल जो है एग्जीबिशंस कंटिन्यू रखें, उसको ब्रेक ना करें। बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, आफरीन रावलपिंडी से सुन रही हैं, और वो कहती हैं कि आपका प्रोग्राम भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ खूबसूरत मौसम का भी लुत्फ ले रहे हैं, चूंकि बारिश का मौसम है। और बहुत शुक्रिया आपका आफरीन। अफजल शाहीन साहब हमें कमेटी चौक से सुन रहे हैं, कलर सईदा से नईम साहब हमें सुन रहे हैं, G13 में भी हमें सुना जा रहा है। आसिम राव जमील साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। मंडी मोड़ से साकिब एवान साहब हमें सुन रहे हैं, और मरी से जहीर अब्बासी साहब हमें सुन रहे हैं। जहीर साहब, आपने ये नहीं बताया कि मरी का मौसम कैसा है। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। सारी साहिबा हमें बताइएगा कि शोबा फाइन आर्ट्स तालिबात को आर्ट इंडस्ट्री से कैसे जोड़ता है। नीज ये भी बताइएगा कि तालिबात को पेशा वराना फनकारों और गैलरियों के साथ काम करने में कौन से मौके मैसर होते हैं। सबसे अच्छी हमारी डिग्री की बात यह है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है इंटर्नशिप, और एक होता है एक्टिव सिटीजनशिप प्रोग्राम, जो कि HEC की तरफ से मस्ट है कि ये दो कोर्सेज जो हैं वो स्टूडेंट्स ने करने होते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है इन कोर्सेज का। इंटर्नशिप जब हम स्टूडेंट्स ने करनी होती है तो उसमें ये होता है कि उन्होंने अपने रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट करना होता है, और वहाँ पे प्रैक्टिकली जो भी उनका फील्ड रेलिवेंट काम है वो करना होता है। तो हमारे साथ इस टाइम पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कनेक्टेड हैं थ्रू इंटर्नशिप। इसमें WWF पाकिस्तान है, इसमें हम इसी तरह भी हमारे पास PNCA में स्टूडेंट्स बहुत सारी जो हैं वो एज अ क्यूरेटर, एज अ मैनेजमेंट आर्ट मैनेजर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसी तरह रावलपिंडी आर्ट काउंसिल जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव है इस हमारी फील्ड में, उस वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो बेसिकली हमारी बहुत वास्ट फील्ड है। लास्ट ईयर भी हमारे स्टूडेंट्स ने जॉयलैंड जो है पार्क रावलपिंडी में, वहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके लिए 3D स्कल्पचर्स बनाने होते हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे किया। अभी रिसेंटली वहाँ पे फेस्टिवल के लिए हमारे स्टूडेंट्स ने काम किया। इसी तरह म्यूजियम्स के लिए हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहाँ पर वो म्यूजियम के पोर्शंस डिजाइन कर रहे हैं। सो ना सिर्फ पेंटिंग के, स्कल्पचर में, डिजिटल मीडिया कोर्सेज उनको जो पढ़ाए होते हैं उसमें भी ये इंटर्नशिप में काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है हमने WWF के साथ प्रोजेक्ट किया जिसमें मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट बिस्कोनी इन और एक्सोनोबल, इन सब की कोऑपरेशन के साथ हमने वॉल पेंटिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, जो कि फेडरल में इस्लामाबाद में 5 स्कूल्स की वॉल्स थी, जो कि इको स्ट्रोक जिसका नाम था, जो कि एनवायरनमेंट से रेलिवेंट पॉजिटिव मैसेजेस
पेंट करने थे, तो वो हमने रिसेंटली उनके साथ कंप्लीट किया. इसी तरह हम टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट्स नॉट विद इन यूनिवर्सिटी एज वेल, हम अपने यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी कनेक्टेड हैं. स्टूडेंट्स उनकी थीम्ड पेंटिंग्स भी बना रहे हैं इस टाइम पे. इसी तरह हम यूनिवर्सिटी के बाहर जहाँ जहाँ हमारे लिए पॉसिबल कनेक्शंस हैं वहाँ उनके साथ कनेक्शंस बनाते जा रहे हैं और स्टूडेंट्स हमारे वहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं. इसी तरह एक्टिव सिटीजनशिप प्रोग्राम में भी हमने फुली उनको इन्वॉल्व किया हुआ ताकि वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्टेड रहें. यही उनको फिर हेल्प करता है आफ्टर ग्रेजुएट होने के बाद, वो उनको जॉब्स के लिए भी इसी चीज़ की हेल्प हो जाती है फिर. अच्छा साहिर साहिबा, जैसा कि एक मजबूत पोर्टफोलियो तैयार करना फाइन आर्ट्स की तालिबात के लिए बेहद जरूरी होता है, इसलिए हमारे सामीन को आगाह कीजिएगा कि ये शोबा तालिबात को पेशा वराना पोर्टफोलियो बनाने में कैसे मदद करता है, जिससे तालिबात की महारतें और तख्लीकी सलाहियतें निखरती हैं. सबसे इम्पोर्टेंट तो जो हमारे फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी का एलिमेंट ज़्यादा होता है, और जब जैसे जैसे वो पढ़ते हैं वो ये चीज़ उनके एलिमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है. वो क्रिएटिवली वो अपने दिमाग से नए तरीके सोचते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट कि ये कि वो जब अपने काम बनाते हैं तो सब देखें, जब हम मार्केट में जाना होता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम दिखाना वो डिफरेंट होता है, जबकि आप मार्केट में जाते हो उसको प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपका जो पोर्टफोलियो वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए. तो हम उनको विद इन जब हमारी डिग्री होती है उसमें हम डिजिटल मीडिया कोर्सेज में उनको डिजाइन के सॉफ्टवेयर भी साथ साथ पढ़ा रहे हैं, ताकि वो जब अपना काम करें तो उसको बेहतर तरीके से उनको डिजाइन भी करना आए. क्योंकि वो जब मार्केट में जाते हैं उनको पोर्टफोलियो, आजकल आपको पता है डिजिटल दौर है, तो हर चीज उठा कर लेकर जाना ये फीजिबल नहीं है. तो उनको ड्यूरिंग जो डिग्री है उसमें 2 कोर्सेज हम करवा रहे हैं, जिसमें उनको एडोब फोटोशॉप भी सिखाया जाता है जो कि डिजाइन सॉफ्टवेयर, और एडोब इलस्ट्रेटर भी सिखाया जाता है. उसमें ये होता है कि उनकी इतनी क्रिएटिव जो स्किल्स हैं वो डिजिटल स्किल्स भी उनके स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं, ताकि जब वो पोर्टफोलियो अपना डिजाइन करें तो उनके पास ये स्किल्स भी हों. तो इसको यूज करते हुए वो अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, और माशाल्लाह से अभी मार्केट में इन है स्टूडेंट्स. सारिश जमील साहिबा, बहुत सारे लोग हमें सुन रही हैं, गुले लाला हमें सुन रही हैं, और उन्होंने एक सवाल पूछा है कि वो लोग जो कि फाइन आर्ट्स में डिग्री तो नहीं हासिल करते और ये शौक की हद तक होता है, तो उन्होंने पूछा है कि क्या ये बस एक शौक है या इसका कोई प्रोफेशनल मुस्तकबिल भी है? बिल्कुल, ये तो एक प्रोफेशन है. कुछ सालों पहले अगर हम देखा जाए तो ये फील्ड कंसिडर नहीं की जाती थी, लोग इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये भी एक फील्ड है. बट इस टाइम पे जो आपकी एक अगर आपको एक इलस्ट्रेशन भी इवन के बनानी आती है तो ये हाईली पेड फील्ड है. इलस्ट्रेशन बनाना यानी एक ड्राइंग बनाना किसी भी फिगर की, जैसे आप देखते हैं कि स्टोरी बुक्स होती हैं बच्चों की, उर्दू की स्टोरी बुक्स हो गई, इंग्लिश की स्टोरी बुक्स हो गई, तो स्टोरी बुक में सिर्फ टेक्स्ट सिंपल सिर्फ पढ़ना अगर होता स्टोरी बुक में तो कोई भी बच्चा नहीं खोल के देखता जब तक कि उसमें तस्वीरें नहीं होती. तो ये जो आपको नजर आती है इलस्ट्रेशंस, अट्रैक्टिव इलस्ट्रेशंस जो बच्चे पढ़ते हैं वो सारे के सारे फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो बनाते हैं, और ये हाईली पेड फील्ड है. आपको एक एक इलस्ट्रेशन की बहुत अच्छी अमाउंट पे होती है. इसके अलावा आपके जो है वो आर्ट की बेसिकली आप म्यूजियम में देखें तो म्यूजियम को मैनेज करना, उसमें कौन सा पीस जो है वो कहाँ पे प्लेस करना, फिर सेकेंडली जो एग्जीबिशंस करते हैं आर्ट गैलरीज में उसमें आर्ट क्यूरेटर एक फील्ड होती है प्रॉपर, जो कि हाईली पेड फील्ड है, जो कि एज अ प्रोफेशन है प्रॉपर. अगर कोई एग्जीबिशन में क्यूरेटर ना हो तो वो एग्जीबिशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता. इसी आर्ट क्यूरेटर में ही इतनी ज्यादा फील्ड्स हैं कि उसने मार्केटिंग भी करनी है, उसने अरेंजमेंट भी करनी है, उसने गेस्ट को भी मैनेज करना है. इसके अलावा आर्ट एजुकेटर एक प्रॉपर फील्ड है. जैसे कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे भी इसका ऑब्वियसली इस फील्ड का फायदा जो है वो हो रहा है. इसी तरह इसके साथ साथ आप क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, बेसिक बड़ी बड़ी डिजाइन हाउसेस में क्रिएटिव डायरेक्टर्स फाइन आर्ट्स में से हैं, और इस टाइम पे कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि अपनी प्रमोशन ना करवाती हो. ठीक है, उसको डिजिटली या फिर किसी तरीके से मार्केट करवाना है. तो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हुए हर एक फील्ड में अपनी एक जॉब रखते हैं. साहिर साहिबा, जैसा कि इश्तराक नाकाबिल यकीन तख्लीकी नताइज का बाइस बन सकता है, लिहाजा बताइएगा कि तालिबात के लिए शोबे में या दीगर शोबों के साथ इश्तराक पर मबनी आर्ट प्रोजेक्ट्स पर काम करने के मौके मौजूद हैं? जी बिल्कुल. जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हमारे बच्चों ने एनवायरमेंटल स्टडीज एक प्रॉपर एक अलग फील्ड है, जो कि हमने WWF पाकिस्तान के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किया जो कि माहौलियात के ऊपर पॉजिटिव मैसेजिंग करता है. उसके साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई. इसी तरह हमारे डिफरेंट फील्ड्स देखें, बेसिकली आर्ट जो है वो
अच्छी प्रमोशन के लिए, अपने मैसेजेस जो हैं वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है. तो हम इवन के बायोलॉजी के साथ भी कनेक्टेड हैं, हम जोलॉजी के साथ भी कनेक्टेड हैं, मैथमेटिक्स के साथ भी. थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमने विद इन सारी फील्ड स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस करवाया है विद इन दिस डिग्री कि वो हर एक फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, उनका पार्ट है. तो कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जी साहिर साहिबा, हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे. तो साहिर साहिबा, आप हमें बताइए कि फाइन आर्ट्स तालिबात को माशरे में आर्ट के किरदार को दरियाफ्त करने की तरकीब कैसे देता है. नीज ये भी बताइएगा कि वो कौन से मंसूबे या इकदामात हैं जो आर्ट के जरिए समाजी मसाइल को हल कर सकते हैं. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो एक आर्टिस्ट होता है वो सोशल चेंज ला सकता है, ठीक है, और वो सेकेंडली वो अपने सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है. आर्टिस्ट क्योंकि सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, तो वो हमेशा अपने सोसाइटी से इफ़ेक्ट होते हैं और हमेशा अपने आर्ट के थ्रू उनका कोई ना कोई एक एलिमेंट जिससे वो इफ़ेक्ट हुए होते हैं या वो ऑब्जर्व, और बहुत अच्छे ऑब्जर्वेंट्स भी होते हैं आर्टिस्ट स्पेशली. वो बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं किसी भी एलिमेंट को, वो चीज़ों से इफ़ेक्ट होते हैं बहुत डायरेक्टली. तो ऑटोमेटिकली उनके काम में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी किसी आर्टिस्ट का काम देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये किस सोसाइटी में रह रहा है, वो कितना इम्पैक्ट हो रहा है, उसके खुशहाली का अंदाज़ा आप उसके आर्ट वर्क से लगा सकते हैं कि वो उसकी सोसाइटी से वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है. तो जो आपकी आर्ट गैलरीज हैं वो सिर्फ एक नुमाइश नहीं है. आपकी जो आर्ट गैलरीज हैं वो आपको उस टाइम की सोसाइटी की एक पिक्चर दिखा रही हैं. जैसे कि आपको एग्जांपल दूं कि हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं जब तो फाइनल थीसिस टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो उनको कंप्लीट फ्रीडम होती है कि वो अपनी मर्जी का कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करें और उसके ऊपर थीम्ड पेंटिंग्स डिज़ाइन करें. तो और ये भी स्टूडेंट्स मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो पर्सनल टॉपिक्स लेते हैं, लाइक वो जो कि उनके साथ रिलेट करते हैं. तो हमने देखा है कि उनके जो टॉपिक्स होते हैं उनके थ्रू उनकी पेंटिंग्स के थ्रू हमें पूरी उनकी लाइफ नजर आना स्टार्ट हो जाती है. समटाइम्स उनके कलर्स के साथ, उनकी इमेजरी के साथ, उनके एक्सप्रेशन के साथ. तो जब आर्टिस्ट जो है वो अपनी सोसाइटी का इतना डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है तो वो लाजमी अपनी आर्ट वर्क के थ्रू अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं. उनके अंदर स्किल्स भी हैं. एक तो वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और दूसरा कि वो लोगों पे इम्पैक्ट करते हैं. आपका जो आर्ट वर्क है वो दूसरे के ऊपर बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है. जो तस्वीर होती है वो लफ्ज़ों से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है. तो आर्टिस्ट के पास ये स्किल भी है कि वो कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहा है तो वो आम लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को मैसेज कन्वे कर सकता है. तो वो ना सिर्फ सोसाइटी की पिक्चर होता है बल्कि वो एक सोसाइटी की अच्छी पिक्चर बनाने की भी सलाहियत रखता है. अगर वो उसमें पॉजिटिविटी ऐड करना शुरू करे या अपने किसी भी कैंपेन को या किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए वो अगर अपनी अच्छी जो भी उसके पास टेक्निक्स हैं वो यूज़ करे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होगा सोसाइटी पे. तो आर्टिस्ट एक बड़ी फंडामेंटल एलिमेंट है जो कि खुद भी इफेक्ट हो रहा है लेकिन वो दूसरे लोगों पे भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है. तो जो माशरा है वो माशरे की अक्कासी जो है वो आप किसी भी आर्ट वर्क से देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं. जी बिल्कुल, हर तस्वीर जो है एक कहानी बयान कर रही होती है अगर आप तस्वीर को देखें तो. क्योंकि आर्टिस्ट के पास ये फन होता है कि आप अपने जना काम से, अपने आर्ट से जो है ना मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं. इधर मतलब कि जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ वहाँ पर जो है ना साइकोलॉजी के लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ना अपने मैसेजेस कन्वे करते हैं आर्ट के थ्रू इतने ज्यादा, और ये काफी ज्यादा असरअंदाज भी करते हैं. जो आपका आर्ट होता है वो ज्यादा बोलता है. बिल्कुल, और इसी की एक फील्ड भी अब डेवलप हो चुकी है जो कि पहले इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी लेकिन अब आर्ट थेरेपी की एक फील्ड भी डेवलप हो रही है. आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जब वो आ रहा है, उसके अंदर शऊर आ रहा है तो उनको ये समझ आ रहा है कि आर्ट एज अ थेरेपी भी यूज हो रहा है. जैसे आपने जिक्र किया ना साइकोलॉजी फील्ड का, तो आर्ट एक प्रॉपर मीडियम है लोगों का इलाज करने के लिए. तो ये एक बेस्ट मीडियम है. मेडिसिन के बजाय अगर आप रंगों के साथ इलाज करें तो ये ज्यादा इफेक्टिव है. तो ये भी एक फील्ड जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि अगर आपको कोई भी परेशानी है जो जिसका रिलेशन है साइकोलॉजी के साथ तो आप इसको एज अ मीडियम भी यूज कर सकते हैं लोगों को बेहतर बनाने के लिए. कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन तरीका है. exactly. बिल्कुल. साहिर साहिबा, हमें बताइए, हमारे सामईन को बताइए कि रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी के शोबा फाइन आर्ट्स में रिवायती तरीकों से लेकर असरी तरीकों तक
तक मुजस्समा साजी की तकनीकें कैसे सिखाई जाती हैं और तालिबात अमूमन किस किस्म के प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं? हम स्कल्पचर के जो हमारा ये है स्कल्पचर सब्जेक्ट है वो भी हम उसके डिफरेंट लेवल्स प्रोवाइड करते हैं और ये हम एज अ मेजर भी ऑफर कर रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं आपके स्टार्ट हम स्टूडेंट्स को क्ले के साथ करवाते हैं, ठीक है। तो क्ले मॉडलिंग होती है, क्ले के साथ जो है वो बनाना सिखाते हैं, उसको हैंडल कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है। फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ों को 3D में क्रिएट करना, यानी स्कल्पचर फॉर्म में क्रिएट करना। उसमें डिफरेंट मीडियम्स फिर हम सिखाते हैं जिसमें वायर स्कल्पचर्स भी आ जाते हैं। फिर हम प्लास्टर के साथ भी उनको इंट्रोडक्शन करवाते हैं जिसमें वो मोल्डिंग करते हैं, मोल्ड्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उनको रेजिन का भी इवन के करवा रहे हैं, फाइबर ग्लास भी मीडियम वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जिस लेवल स्टेप बाय स्टेप हम उनको ये टेक्निक्स सिखाते हैं जिससे वो ना सिर्फ वो बनाते हैं स्कल्पचर्स बल्कि उनका मोल्ड भी बनाते हैं जिससे वो कास्टिंग भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें भी हमारा जो है हमारे पास एक बहुत वेल इक्विप्ड जो है वो प्रॉपर स्कल्पचर स्टूडियो है जिसमें हमारे पास हर ज़रूरत की जो स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। इवन कि हम स्टूडेंट्स को इशू करते हैं अपने पास जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, हम स्टूडेंट्स को उससे भी फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा सारी साहिबा, हमारे सामीन को मिनिएचर आर्ट के बारे में बताइएगा। चूंकि मिनिएचर आर्ट में एक भरपूर रिवायत समझी जाती है, रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी के शोबा फाइन आर्ट्स में मिनिएचर आर्ट की तालीम कैसे दी जाती है और तालिबात को कौन सी मुनफरिद तकनीकें सिखाई जाती हैं? मिनिएचर जो है वो बहुत ट्रेडिशनल एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत सब यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर नहीं होता। तो ये भी एक रेयर सब्जेक्ट हो गया हुआ है जो कि ऑफर हो रहा है। ये भी एक स्पेशलिटी है कि रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी में हम मिनिएचर पेंटिंग भी ऑफर कर रहे हैं। इसमें हम स्टूडेंट्स को जैसे पेंटिंग बनाने के लिए कैनवस प्रिपेयर करना होता है, इसी तरह मिनिएचर के लिए वसली एक मीडियम है वो प्रिपेयर करना होता है आउट ऑफ पेपर्स। तो हम उसकी प्रिपरेशन से लेकर उनके पेंट्स की प्रिपरेशन भी सिखाते हैं कि पेंट्स कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद जो बेसिक टेक्निक्स हम करवा रहे हैं वो नीम रंग, गद रंग, स्याह कलम, गौश, ये सब टेक्निक्स हम स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। और इसमें हमने ट्रेडिशनल भी वैल्यूज उसको बरकरार रखा है और हम जो है उनको ये भी मौके देते हैं कि वो उसको आज मॉडर्न थीम्स के अकॉर्डिंगली उसको वो भी उसको ट्रांसफॉर्म करें। जी तो सामीन एक बार दोबारा बताती चलूँ, हमारे साथ मौजूद है सारी साहिबा जिनका ताल्लुक फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से है। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला इस तरह जारी रखेंगे। सारी साहिबा, जैसा कि हम ब्रेक से पहले मिनिएचर के बारे में बात कर रहे थे, इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हैं। मिनिएचर आर्ट की तारीखी जड़ें बहुत मजबूत है। ये बताइएगा ये प्रोग्राम किस तरह तालिबात को इस सिंफ में असरी मौज़ूआत और असलूब का तजुर्बा करने की तरगीब देता है? बेसिकली जिस तरह मिनिएचर में देखा जाए तो कोर्ट सीन्स आपको ज्यादा नजर आएंगे जिसमें आपके जो है वो फिगर्स जो हैं वो प्रॉपर आपको शाही महल या इस तरह के आपको नजर आएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को ना सिर्फ ट्रेडिशनल सारे मेथड्स जो हैं वो टेक्निक्स सारे हम सिखाते हैं बल्कि उनको हम जो है ना मॉडर्न टेक्निक्स के लिए भी उनके लिए फ्रीडम हम देते हैं। जिस तरह के वो सारी टेक्निक्स जिस तरह स्याह कलम है, गद रंग, नीम रंग, गौश, ये सारी टेक्निक्स वो एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद उनको फ्रीडम दी जाती है कि वो उसके अंदर मिक्स मीडिया को भी एक्सप्लोर कर सकें। तो हमारे जो भी थीसिस के स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत सारे न्यू मेथड्स भी अपने अंदर अपने थीसिस में एक्सपेरिमेंट किया उनके साथ। जी सारी साहिबा, मिनिएचर आर्ट अक्सर सकाफती बयानिए की अक्कासी करता है। ये बताइएगा कि ये प्रोग्राम किस तरह सकाफती और तारीखी तनाज़ुरात को मिनिएचर की आर्ट का तख्लीक में जम करता है? बेसिकली देखें, जब आर्ट में जो है वो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स को भूल जाएंगे तो फिर हम बेस जो है वो अपनी वीक कर देंगे। तो जो मिनिएचर है वो सबसे बेसिकली ओल्डेस्ट ट्रेडिशन फॉलो, और ये ऐसा फील्ड है जो कि अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स को ही फॉलो किया जाता है इसके अंदर। और इसको हम हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है। हम हमेशा से फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में मिनिएचर की फैकल्टी के मामले में हम बहुत खुशनसीब हैं। हमें बहुत अच्छी फैकल्टी मिली है जो कि ये सारे मेथड्स जो हैं वो बड़े अच्छे से स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाए फैकल्टी में। और हम कोशिश करते हैं कि सारे जो है वो टेक्निक्स जो है वो स्टूडेंट्स को प्रॉपरली सिखाई जाए। जी तो साइद साहिबा, बहुत सी तालिबात भी हमें सुन रही हैं, तो उनके बारे में हमें बताएं कि फाइन आर्ट्स प्रोग्राम की फारिगुल तहसील तालिबात के लिए करियर के कौन से मौके दस्तयाब होते हैं और यूनिवर्सिटी तालिबात को पेशा वराना फनकारों के तौर पर या मुतल्लिका शोबों में करियर के हुसूल में किस तरह मदद करती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की फाइन आर्ट्स की स्पेशलिटी है ना, वो ये कि वो एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम है।
ٹھیک ہے. یہ سب سے زیادہ ابھی اگر آپ بات کریں ماڈرن ٹرینڈس کی, جو ایجوکیشن کے ماڈرن ٹرینڈس ہیں, تو سب سے زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ کو اسکل بیسڈ ڈگری ہو. جو آپ کی تھیوریٹیکل بیسڈ نالج ہے وہ ایک لمیٹڈ نالج ہے جس میں آپ کو جابس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسی اسکل بیسڈ جو ہے وہ ڈگری ہے جس میں آپ ڈپینڈنسی کم ہے, جس میں آپ سیلف پروفیشنٹ بن سکتے ہیں. سو اس میں آپ سب سے امپورٹنٹ تو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ جب گریجویٹ ہوں تو وہ اپنا کام اسٹارٹ کریں. انٹرپرینورشپ پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام پروڈیوس کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جو مارکیٹ میں اویلیبل پوزیشنز ہیں وہ بہت ساری ہیں, جیسے کہ آرٹ کیوریٹر ہے, یہاں پہ گیلریز ہیں, میوزیمس ہیں, وہاں پہ آرٹ کیوریٹر کی جابس ہیں. پھر کریٹو ڈائریکٹرز ہیں, جو جتنی بھی ڈیزائن ایجنسیز ہیں وہاں پہ آپ کی کریٹو اسٹوڈنٹس کو جو ہے پریفر کیا جاتا ہے, وہاں پہ آپ ہائر ہو سکتے ہیں. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو ریفرنس دیا کہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ایشوز پر کام کر رہی ہیں, وہ این جی اوز ہو سکتی ہیں, بہت ساری ویریشن. تو اس میں ان سب میں یا تو اپنے آپ کو مارکیٹنگ کرنے کے لیے ان کو کریٹیوٹی تو ریکوائرڈ ہے ہی. تو جیسے کہ ماحولیاتی جو ادارے ہیں وہ بھی وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ بہت بڑا اسکوپ ہے. اسی طرح آپ کو کمیونیکیشن ڈیزائن کے اندر بہت اسکوپ ہے, میڈیا کے اندر ہے, آپ کے چینلز ہیں جو سیٹ ڈیزائنس ہیں, پراپر سیٹ ڈیزائنرز جو ہیں وہ ہائر ہوتے ہیں فائن آرٹس اسٹوڈنٹس کے. پھر اسی طرح آپ اگر چینلز میں دیکھیں تو آپ کے پراپس ڈیزائنر ہیں, جو کہ آپ کو یہ جو آپ ڈراماز دیکھتے ہیں اس کے پیچھے جو اتنی ایفرٹ ہوتی ہے آپ کی, جو آپ کا آؤٹ لک کریٹ کرنا ہوتا ہے, اس میں پراپ ڈیزائننگ ہوتی ہے. اسی طرح آپ کا سیٹ ڈیزائن ہے. اس میں اگر آپ ویسے دیکھا جائے تو برانڈس میں, اگر فیشن میں دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ کے پاس ایک پراپر جو ہے وہ اسکلز ہیں سارے کے سارے. آپ ڈیزائنس کے اندر جو ہے وہ فیشن ڈیزائنر, ایز اے فیشن ڈیزائنر بھی آپ کی جاب اویلیبل ہے. دین آپ دیکھتے ہیں کہ برانڈ, آپ مالس میں جاتے ہیں تو آپ کے سامنے پراپر ہر برانڈ کا ایک پراپر ڈسپلے آپ کو اب نظر آتا ہے, جو کہ بہت ٹرینڈ میں ہے. تو فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ بھی جو ہے بہت سکسیزفل ہیں. اسی طرح آپ کے ریسٹورینٹس میں انٹیریئر ڈیزائننگ میں آپ کے پاس بہت زیادہ آپشنز اویلیبل ہیں. تو کریٹیوٹی کی جگہ تو ہر جگہ موجود ہے, بس اس کو ڈھونڈنا وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جابس اور آپ کا کام اگر آپ ڈھونڈنے والے ہیں تو آپ کو کام ضرور ملتا ہے. زبردست. بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں. عائشہ ظفر ہمیں سن رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ جمالیات کی بات آئے گی تو آرٹ اور فنون لطیفہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ انسان کی جمالیات کا بہترین اظہار فنون لطیفہ کے ذریعے ہوتا ہے. بلکہ فنون لطیفہ انسان کی جمال اور ذوق لطیف کے اظہار کا ہی نام ہے. طارق صاحب ہمیں سن رہے ہیں اور آپ نے پروگرام کو پسند کیا ہے. غیاث ہمایوں صاحب ہمیں کہوٹہ سے سن رہے ہیں. اسی طرح سے حسن رضا صاحب ہمیں کہوٹہ سے سن رہے ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ سہرش جمیل صاحبہ کچھ مصوروں کا بھی ذکر کیا جائے, اور پاکستان میں جب مصوروں کا ذکر کیا جائے, مصور نگاری کی بات کی جائے, تو اس فیلڈ میں پاکستان کے مصوروں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام بنایا ہے اور نام کمایا ہے. اس حوالے سے بھی بات کیجیے گا. جی, ہمارے جو ملک میں بہت بڑے بڑے ہمارے مصور گزرے ہیں. سب سے پہلے تو میں اینا مولکا احمد کا نام لینا چاہوں گی, بیکاز انہوں نے وہ بیسیکلی پاکستان بیسڈ آرٹسٹ نہیں تھی, لیکن وہ پاکستان میں آ کر انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی. انہوں نے وہاں پہ خواتین کی تعلیم کو فروغ دیا, کیونکہ پاکستان بننے کے بعد خواتین میں اسپیشلی فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف رجحان کم تھا خواتین کا. سو اینا مولکا احمد جو ہیں وہ آرٹسٹ, انہوں نے یہ ٹرینڈ چلایا کہ خواتین کو فائن آرٹس میں آنا چاہیے, اور انہوں نے ہی ایک کانسیپٹ تھا جو کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ کلاس روم کے اندر بیٹھ کر ہی لرننگ کر سکتے ہیں, تو وہ انہوں نے بریک کیا اور فیلڈ اسٹڈی جو ہے وہ اسٹارٹ کروائی. جس طرح ہم جیسے اسٹوڈینٹس کو ڈرائنگ پینٹنگ کرواتے ہیں تو وہ نہ صرف کیمپس کے اندر بلکہ ہم ان کو خوبصورت جگہوں پر لے کر جاتے ہیں لینڈسکیپ پینٹنگ کے لیے, ڈرائنگ کے لیے. تو وہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ڈفرینٹ جو ہے وہ ایکسپوجر ہوتا ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. سو اینا مولکا احمد بہت بڑی آرٹسٹ تھی. ان کی پینٹنگس کا اپنا ہی ایک الگ اسٹائل تھا, جو کہ جب وہ مسلم کنورٹ ہوئی تھی تو ان کے بہت سارے تھیمس جو ہیں وہ یہاں کے ڈفرینٹ کلچرز اور جو انہوں نے یہاں پہ دیکھی ہماری فیسٹیوٹیز ان کو پینٹ کیا. اس کے علاوہ شاکر علی ہمارے پاس بہت بڑا نام ہے, گلجی ہیں جن کی کیلیگرافی جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے. اسی طرح ابھی لیونگ آرٹسٹ میں بات کریں تو اقبال حسینی لاہور سے, وہ بہت ایک ڈفرینٹ اور امپیکٹفل کام
हैं. इसी तरह निगार नजर हैं जो कि फर्स्ट फीमेल कार्टूनिस्ट हैं पाकिस्तान की, जो कि गोगी स्टूडियोज के नाम से अभी वो अपना रन कर रही हैं, और वो अपने इस कैरेक्टर गोगी के थ्रू जो हमारी सोसाइटी के डिफरेंट मैसेजेस हैं वो कन्वे करती हैं थ्रू स्टोरी बुक्स, कॉमिक्स के थ्रू. बहुत ही इफेक्टिव मैसेजेस वो कन्वे कर रही हैं. तो इसी तरह हमारे पास जो है वो अभी मौजूदा जो आर्टिस्ट हैं इसमें सरकीन सोलंगी हैं जो MCA डिपार्टमेंट के पेंटिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं. उनका काम भी बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव है. तो बहुत सारे नाम हैं मुसव्विरों के जिसमें लाइक अनगिनत नाम हैं जो इस टाइम पे मुसव्विर में. मुसरत फातिमा रियाज भी हमें सुन रही हैं. आप खुद भी उस्ताद हैं और आपका शुभ एजुकेशन है, और उन्होंने भी प्रोग्राम की तारीफ की है और सैरिश आपकी बातों को उन्होंने सराहा है. और मुसरत आप सलामत रहें. और हमारा जो प्रोग्राम है बड़ी तेजी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और बादल भी गरज रहे हैं, बारिश भी हो रही है. तो सईद साहिबा बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ. हमें बताइए कि शोबा फाइन आर्ट्स में उभरते हुए रुझानात में तहकीक की जा रही है और तालिबात को इन शोबों में जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए कैसे मावनत फराम की जा रही है. सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे पास रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी अवेलेबल है. रिसर्च के लिए हमारे पास बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत से इंस्टीट्यूट्स के पास अवेलेबल नहीं है. तो सबसे बेस्ट तो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं लाइब्रेरी वो किसी टाइम भी अवेल कर सकते हैं. सेकेंडली हमारे पास यहाँ कंप्यूटर लैब्स भी अवेलेबल हैं, यूनिवर्सिटी ने वो प्रोवाइड किए हुए हैं. स्टूडेंट्स को जब भी रिसर्च करनी हो तो वहाँ पर बहुत अच्छी जो है गाइडेंस भी अवेलेबल है. ऑनलाइन पोर्टल्स उनको दिए गए हैं जहाँ से वो बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं. ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं. तो रिसर्च की फैसिलिटीज जो हैं वो रावलपिंडी यूनिवर्सिटी ने उनको बहुत अच्छी प्रोवाइड की हैं स्टूडेंट्स को. सारी जमील साहिबा आप हमें बताइए, क्योंकि जो है ना तालिबात सुन रही है हमें, क्योंकि एडमिशन का भी इजरा हो चुका है रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी में. 26 अगस्त आखिरी तारीख है. तो आप तालिबात को क्या जो है मशवरा देना चाहेंगी, क्या पैगाम देंगी जो दाखिला लेने की ख्वाह है रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में? मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को यही गाइड करूंगी कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेफ प्लेस. एक तो ये कि हमारी ये ख़वातीन की यूनिवर्सिटी है, आपके लिए सेफ्टी बहुत अच्छी है यहाँ पे. और सबसे अच्छा कि हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. हमारे पास हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं. हॉस्टल्स में आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, रहने की, खाने की, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. फिर हमारे पास बस सर्विस भी है. और हमारी यूनिवर्सिटी के जो लोकेशन है वो बहुत बेस्ट है. आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं. आने जाने का जो है वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल बहुत इजीली होती है. और क्योंकि शहर के बीच में है तो आपको यहाँ आने में मुश्किल नहीं होगी. सेकेंडली यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है. आपको हर डिपार्टमेंट में ही हाईली क्वालिफाइड जो है वो फैकल्टी मिलेगी. आपकी गाइडेंस के लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल है. तो जो हमारे इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है. जो स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहिए उनके लिए ये मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज हैं. हमारे पास पेंटिंग ड्राइंग का अलग से स्टूडियो अवेलेबल है. मिनिएचर पेंटिंग का स्पेशलाइज्ड अलग से स्टूडियो अवेलेबल है. स्कल्पचर स्टूडियो, प्रिंट मेकिंग स्टूडियो. और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारा जो लैंडस्केप है वो बहुत खूबसूरत है. फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत खूबसूरत है. वहाँ पे काम करने में आपको मज़ा आएगा. जो भी एडमिशन लेना चाहें वो जल्द से जल्द हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो विजिट करें और ऑनलाइन अप्लाई करें. जी, तो सामीन सारिश जमील के इसी पैगाम पे हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं. बहुत शुक्रिया मैम आपका कि आपने हमें वक्त दिया और हमें वक्त दिया और जो है ना यहाँ पर हमें मालूमात दी फाइन आर्ट से रेलिवेंट. तो इस यूनिवर्सिटी टाइम के एक अगले प्रोग्राम में मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ किसी नए मौजू में. तब तक मुझे आपकी होस्ट समिया नासिर और मेरे को होस्ट नासिर अहमद और पंजाब रंग की पूरी टीम को दीजिए इजाजत. अल्लाह निगहबान.